I got it. The 19 letters, Bismillahir-Rahmanir-Rahim is made up of 19 letters. اور وہ جو 19 لیٹرز ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ 19 جو ہے یہ پورا کوڈ ہے، قرآن جو ہے پورے 19 کوڈ پہ ہے. اٹ از اے کمپلیٹلی نیومیریکل کوڈ. جیسے انسان کے اندر کوڈ ہے، وی آر آل کوڈیڈ. ہر چیز جو اس دنیا میں خلق ہوئی ہے سب کے نمبرز، وی ہیو گاٹ نیومیریکل ویلیوز. جیسے ہمارے بھی جینیٹیکل کوڈز ہیں، اگر وہ جینیٹیکل کوڈ سے ہم باہر نکلتے ہیں نا تو پھر ہمارا ایگزسٹنس نہیں ہوتا ہے. اس طرح قرآن بھی اٹس کوڈڈ اور اس کا کوڈ سیکرٹ جو ہے وہ 19 ہے. اور یہ 19 کا ذکر لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ مدثر سے کیا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ دے آر اوور دا ہیل، مطلب وہ جہنم کے اطراف جو ہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ 19 ہے. اللہ کہتا ہے وہ 19 لوگ ہیں. اینڈ پھر دیر از اے کویسچن کہ اس سے بہت سارے ریاکشنز ہوتے ہیں. کوئی لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے یہ سن کے، کوئی لوگوں کا کفر بڑھ جاتا ہے یہ سن کے، اور کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ نے یہ بیان کیوں کیا ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ ریاکشنز. جس طرح بارش کا ڈفرینٹ ریاکشنز ہوتا ہے، ہر چیز کا ڈفرینٹ ریاکشن ہوتا ہے دوسروں پہ، اسی طرح یہ ایمان کا ریاکشن ہے کہ جب اللہ 19 کا بیان کرتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا who are these 19. The 19 name of بسم اللہ الرحمن الرحیم are the 7 8 6 جسے ہم کہتے ہیں نا پنجتن. so they are the ones who are guarding hell. guarding hell کا مطلب ہے کہ کوئی قریب ان کے چاہنے والے اس کے نہیں جا سکتے. they are going to save their people from the fire. آج ہم لوگ ایک قدم اور آگے جائیں گے اور جیسے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ پنجتن کس طرح، ہاؤ از پنجتن ان بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیے دا ویلیو اٹ سیلف، اس میں 5 ورڈز ہیں، 19 لیٹرز ہیں اور 5 ورڈز ہیں. 5 ورڈز کون سا ہے؟ بے ہے ایک، بے یعنی ساتھ میں، وتھ، ان، فرام. اب جس طرح عربک میں ٹرانسلیٹ کر سکیں. ب ایک ورڈ ہے، اسم دوسرا ورڈ ہے، اللہ تیسرا ورڈ ہے، رحمان چوتھا ورڈ ہے، اور رحیم جو ہے وہ 5واں ورڈ ہے. تو نیچرلی 5 ورڈز یہ بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے. 5 از ویری سگنیفیکنٹ بیکاز اللہ نے یہ سگنیفیکنس آپ کے ہاتھ میں ہی رکھا ہے کہ ہاتھ ہے، اور ہاتھ کے ذریعے ہمیں کتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں. پتہ ہے کہ مولا علی کا ہاتھ، واٹ از دا ہینڈ آف مولا علی؟ مولا علی کے ہاتھ کو کہتے ہیں کہ یہ ید اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے. اور کسی نے جب سوال کیا تھا، رسول اللہ نے جب سوال کیا تھا لوگوں سے، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ میرا رائٹ ہینڈ کیسا ہے، ہاؤ از مائی رائٹ ہینڈ. تو کسی نے جواب دیا کہ یہ تو چاند کی طرح ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ چاند کی طرح ہے تو چاند تو کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی نہیں آتا. تو پھر کسی نے کہا یہ پھول کی طرح ہے، گلاب کے پھول کی طرح ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ گلاب کے پھول کی طرح ہے تو گلاب کے پھول کے میں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں اور گلاب کا پھول تو مرجھاتا بھی ہے. تو اب یہ ہاتھ کیسا ہے؟ ہاؤ ول یو کمپیئر دا رائٹ ہینڈ آف رسول اللہ؟ تو کسی نے کہا یہ کافور کی طرح ہے. آپ کہتے ہیں کافور کسے جانتے ہیں نا؟ کیمفر، جو بالکل آف کورس اس کا ہم کافور جو ہوتا ہے کیمفر کا ذکر جنت میں بھی ہے، لیکن یہ اڑ جاتا ہے. تو رسول خدا نے کہا کافور تو اڑ جاتا ہے. تو پھر مولا علی کھڑے ہوئے اور مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا سیدھا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کی طرح ہے. دیٹ مینس بوتھ یور ہینڈز آر سیم. جو سیدھا ہاتھ ہے وہی سیدھا ہاتھ ہے، دونوں سیدھے ہاتھ ہیں. سو دیٹ از دا ہینڈ. دے ڈو ناٹ ہیو اے لیفٹ ہینڈ. ہم کہتے ہیں نا اس میں اصحاب الشامخہ والاصحاب المیمنہ، یعنی the people of the left hand, the people of the right hand، جو سورۃ الواقعہ میں آتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں they do not have a left hand. لیفٹ ہینڈ صرف ان کا ہوتا ہے جس کی عقل جو ہوتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، یعنی جو فیلیبلز ہوتے ہیں، جو غلطی کر سکتے ہیں، ان کے ایک لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے، ایک رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. ون از اسٹرانگر دین دی ادر. لیکن جس کی عقل پرفیکٹ ہوتی ہے، جس کی عقل پرفیکٹ ہوتی ہے اس کا لیفٹ ہینڈ نہیں ہوتا ہے، اس کا دونوں ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ ہوتے ہیں. اور آف کورس مولا علی کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتا کہ مولا علی کے ہاتھ کو کہا جاتا ہے کہ یہ دست اللہ ہے، دست خدا ہے، یا ید اللہ ہے. کیونکہ کسی نے جب سوال کیا تھا نا مولا سے
کہ یا علی آپ سوالوں کے جواب اس طرح دیتے ہیں کہ کبھی آپ سوالوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، کہ جیسے ہی کوئی سوال کرتا ہے اور آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو مولا علی نے اس سے سوال کیا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے دیکھا نہیں اور اس نے جواب دے دیا کہ 5. تو مولا نے کہا تو نے تو انگلیوں کو گنا بھی نہیں، تو نے تو اپنے ہاتھ کو دیکھا نہیں، تو تو نے کس طرح کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہاتھ ہے، میں تو جانتا ہوں کہ اس کے اندر 5 انگلیاں ہیں. تو کوئی بھی ہو، یہ انسان جو تھا یہ منافق تھا، لیکن جو بھی ہو وہ جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. سو واٹ از دا سگنیفیکینس کہ آنکھ بند کرو اور پہچان لو کہ کون تمہارے ہادی اور رہبر ہیں، وہ 5 ہیں. جسے اللہ جب کہتا ہے نا، جس کا انٹروڈکشن کراتا ہے اللہ حدیث قصہ میں، تو اللہ کہتا ہے وہ 5 خمسۃ الذین ہم تحت الکسائے، وہ 5 جو تحت کسا ہیں. So that is what is the 5 and that is what is the significance of بسم اللہ الرحمن الرحیم, the 5 words. لیکن اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آگے آپ کو دیکھے اور لے کے جاؤں گی کہ جو یہ 5 کے سگنیفیکنس میں جو وربلی ورڈز میں کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو بے itself، بے کیا ہوتا ہے؟ بے سے باب ہوتا ہے، باب یعنی دروازہ، اور دروازے کے 2 پٹ ہوتے ہیں اور دروازہ یوں کھلتا ہے بالکل بے کی طرح، یوں ہو گیا تو بند ہو گیا اور یوں ہو گیا، تو جسٹ لائک دی الفابیٹ بے. اور یہ باب کون ہے؟ رسول خدا نے کس کو دروازہ کہا ہے؟ رسول خدا نے مولا علی کو دروازہ کہا ہے اور کہا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا باب الجنہ و علی بابوہا، میں جنت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا باب الہدا و علی بابوہا، کہ میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر کہتے ہیں انا دار الحکمہ و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جو کچھ بھی صفتیں پیغمبر اسلام میں موجود ہیں، چاہے وہ حکمت ہو، عقل ہو، علم ہو، جنت ہو، ہدایت ہو، وہ تمام گھر ہیں. وہ ہی از اے اسٹور ہاؤس آف ایوری تھنگ. لیکن اگر آپ کو اندر جانا ہے تو آپ علی کے بغیر نہیں جا سکتے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو حدیثیں ہیں نا، میں آپ کو قرآن کی طرف، میں صرف بے کی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں قرآن کی طرف لے کے جاتی ہوں آپ. اٹ از دا 189th verse اور سورۃ البقرہ، جس میں کہا جاتا ہے کہ لیس بر بان تاتوا البیوت من الظہورها ولکن بر من اتقى واوتوا البیوت من ابوابها. یہاں پہ بھی اللہ دروازوں کی بات کر رہا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم کسی بھی دروازے میں، کسی بھی بیوت میں، کسی بھی گھروں میں نازل ہو تو تم اس کے پیچھے سے داخل ہو، لیکن نیکی یہ ہے اور تقوی یہ ہے. دیکھیے آیت کہہ رہی ہے کہ نیکی یہ ہے، بر یعنی نیکی، گڈنس، اور تقوی یعنی تقوی جو متقیوں کا ہوتا ہے، جو مومنوں کے مرتبے سے بڑا تقوی، ایمان سے بڑھ کے جو مرتبہ ہے وہ تقوی کہلاتا ہے. ایمان سے بڑھ کے پہلے آپ مومن بنیں گے، بعد میں آپ متقی بنیں گے. تو کہتے ہیں جو تقوی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دروازے سے داخل ہوگا وہ نیکی ہے اور وہ تقوی ہے. تو یہی تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر ہوں اور علی اس کا در ہے. اور اگر آپ یہ آیت کو تفسیر میں لے جائیں تو تفسیر میں آیت یہی کہے گی جو رسول خدا اپنی حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر تقوی حاصل کرنا ہو اور اگر نیکی حاصل کرنا ہو، میں جنت کا گھر، میں علم کا گھر، میں ہدایت کا گھر ہوں، میں علم کا گھر ہوں. اگر تم کو داخل ہونا ہو تو علی کے دروازے سے آؤ، آیت کہہ رہی ہے. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرتی ہے؟ وہ تو شروع ہی ہوتی ہے علی سے، باب سے. باب یعنی میں نے کہا اوپننگ آف دا ڈور، دیٹ از واٹ از دا بے. اور مولا علی اپنے آپ کو بے کہتے ہیں.
جو मैंने आपके सामने लास्ट टाइम क्लास ली थी, उसमें मैंने आपसे बताया था. सो मौला अली इज द बाब, ही इज द डोरवे थ्रू विच यू एंटर द कुरान. और अगर इस दरवाजे से आप एंटर नहीं हो सकते हैं, आप इसे नहीं समझ सकते हैं, तो आप जब बिस्मिल्लाह ही नहीं समझे तो फिर आप कुरान नहीं समझ सकते. और अगर आपको कुरान समझना हो तो आपको अली को समझना होगा, क्योंकि ही इज द स्पीकिंग कुरान. पैगंबर इस्लाम कहते हैं और उन्हें कुरान यंतक, द स्पीकिंग कुरान. तो ये है बे, द बाब, जिसके लिए खुद कुरान कह रहा है कि बाब से आना, अगर घर में आना है तो ये इल्म का घर है. कुरान इल्म का घर है, कुरान जन्नत का घर है, कुरान हिकमत का दर है, और कुरान इल्म का दर है. तो अगर ये घर है तो अगर जिसको भी इस घर में आना है तो अली के जरिए आना पड़ेगा, नहीं तो अल्लाह कहता है लैसा बिर्रे, ये नेकी नहीं है. और तकवा वो है कि तुम दरों से घरों में दाखिल हो. तो इसीलिए कहते हैं ना, हम इमाम को क्या कहते हैं, मौला ए मुत्तकियान, इमाम अल मुत्तकियान, के जिसके दरवाजे से हम आते हैं तो हम मुत्तकी हो जाते हैं. एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मदन वाले मोहम्मद पर. बिस्म के बाद में, बे के बाद में इस्म आता है, अलिफ सीन और मीम, जो सिर्फ बे सीन और मीम से ही लिया जाएगा, क्योंकि अलिफ इज, आई सेड इट इज अनसीन. जिस तरह अल्लाह नहीं दिखता, इसीलिए यहाँ पे ड्रॉप हो गया है अलिफ. तो बे सीन और मीम जो है, आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगी कि आप लोग समझते जाए. बे सीन और मीम. बे अभी मैंने आपको कहा कि ये बाब है, और मीम कौन है, मोहम्मद है. हदीसें तमाम उनकी हदीसें उन्होंने बता, तमाम हदीसें जो है वो पैगंबर इस्लाम ने, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ रही थी बाप की हदीसें, वो बता रहे थे. तो दर से घर जुड़ा हुआ है, दर से घर जुड़ा हुआ है. और घर को जोड़ने वाला कौन है, घर को जोड़ने वाला कौन है, घर को जोड़ने वाली, दर से घर को जोड़ने वाली कौन है, सीन, जिसे हम कहते हैं दैट सीक्रेट, और जिसे हम कहते हैं सैयदा. तो आ गए तीन नामों में से, एक मोहम्मद, एक अली और एक फातिमा बिस्म में. और आपको मालूम है घर के दरमियान कौन रही, जनाबे सैयदा रही. और घर के अंदर ही क्या आई, हदीस किस्सा आई और आये ततहीर आई. तो इसीलिए इंट्रोडक्शन जब हदीस किस्सा में हुआ था तो वो सैयदा से हुआ था, बिकॉज शी इज द सेंटर ऑफ द हाउस ऑफ अली एंड मोहम्मद. आगे बढ़ते हैं हम. पंजतन हो गए. लास्ट टाइम मैंने अल्लाह को आपको बता दिया था कि अल्लाह आर द टू टंग्स, और ये भी दो टंग्स जो हैं, ये भी मोहम्मद है और ये भी अली हैं, क्योंकि इनकी जबान किस तरह एक दूसरे से मिली थी काबे के अंदर. आगे बढ़ते हैं हम. रहमान और रहीम. रहमान और रहीम जो है ये अल्लाह की दो रहमतों के नाम हैं, जो एक ही वर्ड रहम से है. रूट वर्ड इज रहम, रूट वर्ड इसका रहम है, इससे रहमान भी है और रहीम भी है. रहम सबसे पहला, रहम यानी मर्सी, अल्लाह की रहमत को रहम कहा जाता है. और दूसरी चीज जिसका नाम रहम है, वो जिसमें बच्चा माँ के पेट में रहता है, द वूम ऑफ द मदर, उसे भी रहम कहते हैं. तो अल्लाह ने अपनी रहमत का नाम माँ की कोख को दिया. He called the womb of the mother the रहम, क्योंकि बिल्कुल उस तरह, it is the reflection. The womb of the mother is the reflection of the mercy of Allah. रिस्क दे रही है, हिफाजत कर रही है, पाल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन किसी को पता नहीं, माँ के शिकम में है. सो दैट इज द रहम. तो रहम से रहमान भी है और रहीम भी है. तो सबसे बड़ा रहमान जो है वो परवरदिगार है, इसलिए हम कहते हैं अर रहमान. अर रहमान का मतलब है द मोस्ट मर्सीफुल, सबसे ज्यादा रहम करने वाला. तो अर रहमान अल्लाह है. और उसने जब सबसे पहला रहम बनाया, when he created the first womb, पंजतन पाक में वो वूम थी, सबसे पहले जो वूम बनाया, जो रहम बनाया, वो जनाबे सैयदा का रहम था. और उनसे जो औलादे पैदा हुई, दो इमाम, एक हसन एक हुसैन. तो दिस इज इजीली ट्रांसलेटेड. द रहम इज अनसीन. जिस तरह अल्लाह अनसीन है ना, द क्लोजेस्ट टू अल्लाह इज बीबी सैयदा. जिस तरह अल्लाह इज अनसीन इन द अलिफ, इन द इस्म, इस तरह यहाँ पे रहम जो है दरमियान में है, दो बेटों के दरमियान में है. दे आर द प्रोजेक्टर्स ऑफ हर रहमत. वो एक है रहमान
यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और रहीम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इन दो वर्ड्स पे करूंगी आपको। तो पंजतन पूरे आ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। अब इससे हम थोड़ा आगे जाएंगे, और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि एक सूरा है कि जिसमें बिस्मिल्लाह एब्सेंट है, और बिस्मिल्लाह एब्सेंट का मैंने आपको रीजन बताया था, एक नहीं 2-3 रीजंस दिए होंगे मैंने। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि एक सूरा है जिसमें प्रेजेंस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सेकेंड टाइम। सो व्हाई इज, विच इज दैट सूरा, वो कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रेजेंट है 2 मरतबा? वो है सूरतुल नम्ल। नम्ल मीन्स द एंट। नम्ल का मतलब होता है दो, मीन्स एंट, और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा आया है। अब देखिए, ये सूरा जो शुरू होता है ना, ये मुक़त्ताआत से शुरू होता है। मुक़त्ताआत जिसे हम कहते हैं द अब्रीविएटेड लेटर्स ऑफ द होली कुरान, जैसे अलीफ, लाम, मीम, जैसे कि यासीन, जैसे कि ताहा, इस तरह इन्हें कहा जाता है मुक़त्ताआत। तो ये जो शुरू होता है, ये जो सूरा शुरू होता है, इसके मुक़त्ताआत 2 अरबिक लेटर्स हैं जिसे हम कहते हैं ता, सीन। और फिर सूरा आगे जाता है तो पहली वर्स कहता है तिलका आयातुल कुरआन वल किताबिन मुबीन। तो अब देखिए, जो दो लेटर्स खुद सिग्निफिकेंस हैं, 2 लेटर से जो शुरू हो रहा है, 2 लेटर्स सिग्निफिकेंस हैं। किस चीज के? 2 मैसेजेस के, 2 मैसेजेस के सिग्निफिकेंस हैं। और देखिए, सबसे पहले खोलो मैं तोय, क्या है तोय, क्या है, व्हाट इज तोय? हम एक सूरा होता है ना ताहा, ये 2 सूरों के मुक़त्ताआत जोड़ के बना है। एक है ताहा और दूसरा है यासीन। तो ताहा से तोय लिया गया और यासीन से सीन ली गई, तो हमें मिला ये सूरे का, सूरतुल नम्ल का ता सीन। तो अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तोय को किस तरह बयान करते हैं? वो कहते हैं तोय से है ताहिर और तैयब और तालिब हिदायत भी। सो जो सूरत ताहा शुरू होता है उसे हम कहते हैं ताहिर और तैयब, और उन्हें तालिब हिदायत भी कहा जाता है, क्योंकि उन पर वही आती थी और वही हिदायत से खुदा की, वही से वो जो भी करते थे उसी हिदायत से करते थे। और जो उसके आगे सीन है, वो सीन यासीन से लिया गया है। तो फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सीन कौन है? एंड इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये सीन का जो सीक्रेट है, ये सीन का जो मुक़त्ताआत यहाँ पे यूज किया हुआ है वर्ड, जो तो इसका मतलब होता है पैगंबर इस्लाम, रसूल अल्लाह। तो पहला तो है वो है ताहा का, और दूसरा सीन है वो यासीन का। तो ता है तैयब, ताहिर, और सीन है सैयद। रसूल खुदा का टाइटल है सैयद, ही सैयदुल मुरसलीन, उनसे ही ये लक़ब 12 इमामों को मिला है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं वो सीन से सैयद है। तो इसके अगर हम लोग भी, इफ वी गो अ लिटिल डीपर इनटू द कुरान, इट गिव्स यू अ फीमेल वर्जन, क्योंकि जब आयत शुरू होती है ना, तिलका आयातुल कुरआनी व किताबिन मुबीन, तो जालिका जब शुरू होता है ना, जालिकल किताब, जालिका इज ही एंड तिलका इज शी। सो ना नेचुरली जब कुरान की पहली आयत आपको डायरेक्ट कर रही है फेमिनिटी की तरफ, कि तिलका आयात, ये वर्सेस, these female verses, what does it mean? That means that toy, and that means that scene belongs to a female. Yes, definitely it belongs to a female. Lekin which female it belongs to? The one who is the juz of nabuwat, who is the part of risalat, जिसे रसूल कहते हैं ना कि ये जुज है, मेरा जुज है, ये नबी का जुज है, ये रसूल का हिस्सा है, जिसे पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि मेरे दो दरमियान, मेरी दो जन्मों, बिटवीन माय टू साइड्स, इन बिटवीन सैयदा, यानी मेरा कल्ब। तो जो नबूवत का जुज है वो सैयदा है। तो नेचुरली ये सैयद, ये तोय का मतलब ताहिर है या तैयब है। तो अगर ये आयातें हमें फेमिनिटी की तरफ पॉइंट करती हैं तो वो तोय हो जाएगा ताहिरा।
जो ताहिरा, जो हदीस किसा की ताहिरा है ना आयत ततहीर की, वो हो गई ताहिरा, और तैयबा भी उनका नाम है, ताहिरा भी वो हैं, तैयबा भी वो हैं, और सीन से जो सैयद हैं वो यासीन में पैगंबर इस्लाम है, लेकिन यहाँ पे तिल का आयात, दीज फेमिनाइन वर्सेस, इट मींस दैट शी इज सैयदा. नाउ व्हाई, यू नो, दो नाम जनाब सैयदा के इसमें यूज किए गए हैं, एक ताहिरा और एक सैयदा. व्हाट इज द रीजन? आई टोल्ड यू देयर आर टू मैसेजेस इन दिस. दो बिस्मिल्लाह है, मतलब दो मैसेजेस हैं, और न सिर्फ दो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, इसमें दो मुक़त्तआत भी हैं, और न सिर्फ इसमें दो मुक़त्तआत हैं, इसमें दो शहजादियों का जिक्र है. एंड यू नो हु दोस क्वींस आर? वन इज द क्वीन ऑफ द एंड्स, जिसे हमने कहा नमलती, और दूसरी इज द क्वीन ऑफ शीबा, जिसे हम कहते हैं बल्कीस, जो शहजादी थी मुल्के सबा की. तो दो शहजादियों का इसमें जिक्र आया. नाउ नेचुरली दीज आर बोथ फीमेल्स, दीज आर बोथ क्वींस. व्हाट इज सिमिलर अबाउट दीज टू क्वींस? ये शहजादियों का, हम कहते हैं ना, ये शहजादियों के अंदर कौन सी चीज कॉमन है? व्हाट इज कॉमन अमंग बोथ ऑफ देम? यू नो, जब जनाब सुलेमान के लश्कर की आवाज सुनी थी, तो द क्वीन एंट, जो निमलत थी, निमलत मीन्स द फीमेल एंट, तो उसने कहा था चलो चलो जल्द सब अपने घरों में चलो, सुलेमान अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें रौंदते हुए चले जाएं. कुरान की आयत सुना रही हूँ आपको. और जो सुनकर जनाबे सुलेमान मुस्कुराए थे, चीटी की बात सुन के जनाबे सुलेमान मुस्कुराए थे. तो उसने अपनी 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 कौम को उसने वॉर्न किया, जिसे हमने बताया था नजीरतन, नजीरा. यहाँ पे नजीरतन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शी इज अ फीमेल. नजीरा मीन्स अ वार्नर. तो उसने अपनी कौम को वार्न किया कि अगर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें सुलेमान का लश्कर कुचल देगा. तो वो वार्न करती हैं, और उसकी आवाज सुन के सारे के सारे अंदर चले जाते हैं. अब ये चीटी देखिए, इंसान की फितरत क्या होती है, अक्सर वो क्या करता है, जब कोई खौफ होता है, कोई डर होता है, कोई ऐसी मुसीबत आती है, भागता है सबको छोड़ के, और बादशाह तो सबसे पहले चले जाते हैं. सबसे पहले, यू नो, देयर इज अ रूल व्हेन द शिप सिंक्स. आपको पता है ना, जब शिप सिंक होता है तो वो रूल जो उसका है वो बहुत इस्लामिक है. वो रूल है, होता है कि द कैप्टन विल गेट डाउन द लास्ट. जो कैप्टन है वो उतरेगा नहीं जब तक कि सबको उतार न ले. सो देखिए, जिस तरह ने मूसा ने सबको पार कर लिया, फिर खुद ने नहरे नील पे कदम रखा, तो इसी तरह कि इसने सबको वार्न किया कि चलो चलो अपने घर में. तो वो अपनी कौम की खैर ख्वाह थी, वो अपनी कौम से मोहब्बत करती थी, वो अपनी कौम की तबाही नहीं चाहती थी. नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन हर एंड बिल्किस? जब बिल्किस वाज अ वेरी इंटेलिजेंट, ये दोनों शहजादियां जिक्र किया गया है, ये दोनों शहजादियां, दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. और यू नो अक्सर लोग कहते हैं कि यू नो औरतों की अक्ल ज्यादा नहीं होती है, नाकिस होती है, ये वो. और मौला अली के वो लोग पेश करते हैं यू नो कभी कभी खुतबे और कभी कभी सेइंग्स, वो सारी कंडीशनल होती हैं. उन्होंने किस कंडीशन में वो बात कहा था, ये बताइए मुझे. कि शहजादी ज़ैनब सबको इजाजत देती थी तो जाते थे करबला में वो लोग अपनी शहादत पेश करने के लिए. तो वो नेक औरतों के लिए नहीं है जो मौला ने कहा है. दैट इज ऑल कंडीशनल एंड डिपेंड अपॉन द टाइम दैट थिंग हैड टेकन प्लेस, बिकॉज अल्लाह इसमें तारीफों के साथ कर रहा है, औरतों की तारीफ के साथ औरत की अकल को प्रेजेंट कर रहा है. और क्या कहती है, शीबा, द क्वीन ऑफ शीबा, कहते ना बल्कीस, उनके पास मोर देन 100 काउंसलर्स थे जो उन्हें वजीर, जिसे कहते थे ना पुराने जमाने में वजीर थे, वो क्या करते थे, वो उन्हें हर बात की खबर देते थे और हर बात के लिए सोच समझ के, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल मैन शी हैड इन अ काउंसिल हु यूज्ड टू एडवाइज हर. लेकिन जब जनाब सुलेमान ने में खत भेजा जिसके ऊपर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दूसरा बिस्मिल्लाह आ गया, और कहा था कि तुम चली आओ हमारे पास मुसलमान होकर. तो जब ये खत आया तो उन्होंने प्रेजेंट किया वो खत को अपने काउंसिल के अंदर, जिसमें एक से एक बढ़ के मर्द थे तमाम, और एक से एक बढ़कर ज़हीन और इंटेलेक्चुअल लोग. तो उन्होंने कहा, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने कहा हमारे पास इतना बड़ा लश्कर है, हम इतने ताकतवर लोग हैं,
हम क्यों किसी से डरें, चलो हम मुकाबला करते हैं सुलेमान का। वो सारे एक तरफ और जनाबे बल्कीस का दिमाग एक तरफ, उनकी अक्ल एक तरफ। उन्होंने कहा क्या तुम जानते नहीं हो कि जब बादशाह शहर में आते हैं तो इनके इज्जतदारों को बेइज्जत करते हैं, इन शहरों के। तुम जानते नहीं, घरों को तबाह करते हैं, तुम जानते नहीं शहरों को तबाह करते हैं, तुम जानते नहीं सारे लोग मुसीबतों में घिर जाते हैं। तो अब ये रानी जो है, ये शहजादी जो है, ये अपने लोगों की खैर ख्वाह है, अपनी उम्मत की खैर ख्वाह है, नहीं चाहती उनकी तबाही, नहीं चाहती उन्हें कोई नुकसान हो, नहीं चाहती उनकी बेइज्जती हो। सो शी गोज अगेंस्ट हर काउंसिल, वो अपने काउंसिल के अगेंस्ट डिसीजन लेती है और हर डिसीजन इज राइट, और उनका डिसीजन राइट है। इसीलिए ये दूसरी बिस्मिल्लाह है इसमें कि हर डिसीजन वाज राइट बिकॉज शी वांटेड टू सेव हर नेशन, she wanted to she did not want to show her pride. अक्सर आदमी जो है ना अपने अपने एरोगेंस में, अपने ईगो में चूर हो जाता है और अपनी गलती को नहीं मानता, अपनी कमजोरी को नहीं समझ पाता और कहता कि नहीं मैं तो लड़ूंगा। लेकिन यू सी हर इंटेलिजेंस जिसका जिक्र कुरान मजीद में हो रहा है कि इतनी इतनी ज़हीन थी ये बीबी कि इन बीबी ने कहा कि हम लड़ेंगे नहीं, हम तो उनके पास जरूर जाएंगे ताकि हमारी कौम बच सके। तो फिर हुआ क्या, आखिर में उनकी कौम पूरी जो थी बच गई। Now these were the two common things between the two queens, the queen of the ant and the queen of Sheba. They were very very intellectual, they were both females, they were the well-wishers of the communities, they loved the communities. तो अब ये जो तासीन से शुरू होता है, ये जिस्ट है इसमें, ये पूरे सूरे का जिस्ट रखता है। और ये पूरे सूरे का जिस्ट किस तरह रखता है मुझे बताइए आप। ये सूरे का जिस्ट इस तरह रखता है कि दो मौके आए दो औरतों के लिए, दो मौके आए दो औरतों के लिए कि जिससे कौम तबाह हो जाती, मुसलमान का नाम दुनिया में बाकी नहीं रहता। एक जब मौला अली के हाथ में रस्सियां बांधकर उन्हें खींच के ले जाया गया था खिलाफत के दरबार में, और जनाबे सैयदा ने अपने बाल खोल के उन्होंने हाथ बुलंद किए थे बद्दुआ के लिए, और मदीने की जमीन में जलजला हुआ था। फौरन मौला अली ने कहा जाओ सलमान और फातिमा से कहो कि बद्दुआ न करे, क्योंकि अगर फातिमा बद्दुआ करेगी ये पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, ये पूरी कौम तबाह हो जाएगी। वो आते हैं और जनाब सैयदा अब सब्र करके बैठ जाते हैं, क्योंकि खैर खां हैं अपनी उम्मत की, क्योंकि पसंद करती है, मोहब्बत करती हैं अपनी उम्मत से। और दूसरी बीबी वो हैं जो दरबार शाम के बाहर रुकी हैं 72 घंटे, और जब हुक्म होता है दरबार सज जाता है, शहर सज जाता है, और उन्हें हुक्म होता है कि चलो अब अंदर जाना होगा बेपर्दे, इसी तरह रसन बस्ता। तो एक मर्तबा हाथों को बुलंद करती हैं, सैदानियों को बुलाती हैं, कहती हैं कि मैं बद्दुआ करती हूँ तो तुम आमीन करो। और जनाब जब सैयद सज्जाद आगे बढ़ते हैं, बीबी कहती हैं भतीजा होके कहते रहना, आज तुम इमाम होकर मुझे हुक्म नहीं देना। तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं कि फूफी अम्मा मैं कुछ नहीं कहता, जरा चेहरे पे नजर करिए, सरे इमाम हुसैन की तरफ देखिए। और बीबी उस सर की तरफ देखती हैं तो क्या देखती हैं, इमाम हुसैन के सर से आंसू जारी हैं, वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस कौम के लिए बद्दुआ नहीं करो। तो इस तरह वो बद्दुआ नहीं करती हैं और कौम बच जाती है। क्यों नहीं बद्दुआ की? क्योंकि वो अपनी उम्मत की खैर ख्वाह हैं, अपनी उम्मत से मोहब्बत करती हैं। ये दो बीबियां उनकी हाजतें पूरी करने के लिए हैं। एंड दीज आर द टू सिग्निफिकेंसेस, दीज आर द जिस्ट एंड दीज टू आर द सीक्रेट्स ऑफ द सूरतुल नम्ल व्हिच बिगिन एज तासीन। एक है ताहिरा और एक है सैयदा। और ताहिरा सैयदा जैसी कौन है? जिसे पैगंबर इस्लाम कहते हैं सानी ज़हरा। सदक़ुल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔